Namaskaram. Swajaya is glad and proud to bring you a series of interviews of eminent personalities, rather fine artists, who have enriched Indian culture through their mastery of whether it is an instrument, vocal singing, painting, or lyric writing or literature. It is these people who have become the icons of culture of India, who have become a kind of representatives of the greatness and the creativity of India. Concept of art in any other part of the world. In other part of the world, the concept of art is linked with physicality, whether it is beauty or the drawings, whatever it is linked with the physicality. But when it comes to India, rather Bharat, the concept actually started or originated from the origin of the universe. The moment there is a Shabda, Om, through that we got music, and through these vibrations of the Shabda translated into a visual art form. Again, they have been connected with Omkara. That means everything in India is connected with God. God is a personification of Dharma. So ultimately, the art form is nothing but Dharma. That means when an artist performs his art, he is performing his Dharma, and doing his Dharma properly is the ultimate aim of any human being according to Indian philosophy. So when you sing a song, it is not just the body that moves along with the song, but it is the soul that moves. So Indians ultimately understood this laya in the universe. As per Indian philosophy, again, we have a laya in the creation of the universe, maintenance of the universe, in the destruction of the universe. Everything is connected with time. For us, time is God. Time is maintained by tala in music. Time is maintained by shabda in singing. Time is maintained by words in writing. So in every art that originates in India, it is connected with Dharma, it is connected with God, it has a direct connection with cosmic energy. Here today, we will be interviewing certain eminent personalities who ultimately when they talk about their art, they connect it with God, whether it is Pandit Jasraj, Mandolin Srinivas, Pandit Ravi Shankar, or all these eminent personalities. Music is not just physical sound, music is not just a vibration, it is the vibration of the soul, vibration of the universe, vibration of the cosmic energy. Thank you. पंडित जी, संगीत और प्रकृति का क्या रिश्ता है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ संगीत और प्रकृति का रिश्ता तो ऐसा है कि हमने तो कहा ना कि कोयल से पंचम ली, मयूर से मध्यम लिया, ऐसा कुछ जो चक्कर है आपको मालूम है। और उसके अलावा मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा कि मैं ऋषिकेश में था और गंगा पूरी तौर से एकदम चढ़ी हुई थी। अगस्त का महीना था, पूरे तौर से चढ़ी हुई। मैं एक रॉक पे जाके बैठ गया जहाँ से गंगा अंदर जाके बाहर आती थी, अंदर जाके बाहर आती थी और पानी बिल्कुल मेरे करीब आ जाता था। तो वहाँ से एक साउंड आ रहा था गमक का, और जो मैं गमक की प्रक्रिया में इधर उधर करता हूँ वो मुझे वहाँ की देन है। क्या बात? बोल को भी ले लो सच में। कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल, मुकुंद माधव बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल, मुकुंद बोल, केशव माधव सिंहि भस्म आधारी मुद्रा, सिंहि
भस्मधारी मुद्रा दई ब्रजनाथ पठाए, दई ब्रजनाथ पठाए, ये दई ब्रजनाथ पठाए, उधो जोग सिखावन हो, जोग सिखावन जो पे जोग लिखो गोपिन को, जो पे जोग लिखो गोपिन सो, कतरात कतरस रास खिलाए, कतरस रास खिलाए, तब ही क्यों ना जोग उपदेश, तब ही क्यों ना जोग उपदेश, अधर सुधारस प्याए, उधो जोग सिखावन है। मैं जॉगिंग भी करता हूँ और लाइट एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें हाथ और ये मुंडी पैरों को छूना, ये सब। संगीत का कुछ संबंध है क्या, ये जॉगिंग या एक्सरसाइज? संगीत का संबंध तो पूरी बॉडी से है। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, इसका सांगीतिक भाषा में गात्र वीणा, इस शरीर का नाम है गात्र वीणा। तो गात्र वीणा को आप साफ रखेंगे तो आवाज़ साफ निकलेगी। और इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कफ आ जाता है तो आपने देखा होगा कि सितार के अगर तर्ब ठीक नहीं है तो सुर में नहीं बोलती है। तो इस गात्र वीणा को भी इसके तर्ब वगैरह सब ठीक रखना पड़ता है, तब जाके कहीं गाना। इसके लिए खाने में कितना ध्यान दे के खाना पड़ता है कि ये नहीं खाओ वो नहीं। ऑफ कोर्स ये हर एक आदमी के नेचर पे निर्भर करता है। इट्स नॉट मतलब मैं जो खाऊंगा वही हमारे रतन बाबू को मतलब लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने अपने शरीर की बात है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाता हूँ। और मेरे गुरुजी जो थे वो आराम से अपना भजिए, तेल खूब सारा लगा हुआ और बस चावल आवल खा के और फिर गाने के लिए बैठते थे। मैं तो खा के कुछ आया नहीं कर सकता। तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। आप बॉम्बे में इतने साल हुए, ये बॉम्बे बीच आप 30 साल पहले भी देखे होंगे, अभी भी देख रहे हैं। आज बहुत साफ है, आज बहुत साफ है और इसी वजह से मैंने आना छोड़ दिया यहाँ पे। सच कर, मैंने तो बम्बई का जो एक्चुअल वो जो पीछे वाले का क्या नाम, रतन बाबू? नहीं ये वाला पीछे जुहू को इतना साफ देखा है कि, और जुहू और समुद्र का पानी, मैं तो नहाता था इसमें। हाँ, आई एम टॉकिंग 57, एकदम साफ क्लियर। अब तो ऐसा है कि समुद्र के किनारे पे जाने में से लगता है कि चलो घर ही में ठीक है, मगर फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अब कुछ सुधार की तरफ लोगों के ख्यालात आए। मैं अभी नंदू बाबू से कह रहा था कि कलकत्ता एकदम शहर साफ़ हो गया है और बम्बई भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है। सर ठीक नहीं है, बम्बई भी थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रहा है। नहीं, पॉपुलेशन का कंट्रोल हमारे यहाँ मुश्किल है अभी। वो पहले से कर देते तो अच्छा होता। नहीं देखो, हमारे पास में 2 कंट्री हैं जो हमारा ही अंग है। बांग्लादेश में हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल, पाकिस्तान में हो गया, हिंदुस्तान में कब होगा, जब पेपर में आया था। मगर अभी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें, नहीं तो थोड़े दिनों में खेती की जगह ही नहीं रहेगी, सब जगह घर ही घर। एक और क्वेश्चन ये था कि
एक माई सावरे आहा। रंग राचे माझी सावर रंग राचे गया कुमतड्या राधा संगत गया कुमतड्या राधा संगत गया कुमतड्या राधा संगत श्याम पीति जग साची श्याम प्रीति जग साची माझी सावर रंग राची. आप म्यूजिक वीडियो देखते हैं? हैं? म्यूजिक वीडियो आपने कभी देखा? कैसे वाला? मतलब वो नुसरत फतेह अली जी का होता है, वो उनका गाना चलता है, कुछ और इमेजेस आती है, अच्छा, ऐसा कुछ देखा है? हाँ वो दिखा है ना, वो तो ऐसी टीवी में दिखाते रहते हैं. हाँ. हाँ तो टीवी में जो आते रहता, मैं स्पेशली लेकर नहीं आता हूँ, जो आते रहता तो देख लेता हूँ. पसंद तो आया होगा. सभी पसंद है, म्यूजिक में कुछ भी होता है तो पसंद है, कोई उछल कूद होता है तो वो ठीक नहीं. म्यूजिक चलते रहता है तो सभी पसंद है. नहीं, वो म्यूजिक या वीडियो के संबंध के अभी आजकल वो ये हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है. हाँ. म्यूजिक या वीडियो के संबंध क्या है? मतलब म्यूजिक को विजुअलाइज करके उसको वीडियो के अंदाज में पेश करते हैं, जब नया टेक्निक से हो गया है. नहीं नहीं, वो तो उधर से बेस से आया ना. हाँ. बेस्ट में क्या है कि जब भी वो मैडोना हाँ. मैडोना जब गाती है तो पता नहीं उसके कितने कितने अंग के प्रकार दिखाते हैं, क्या क्या कर रही है, मगर गाना पीछे चल रहा है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, और कभी सडनली वो गा रही है अपने स्टेज पे वही गाना. हाँ. तो वो तो आप मर्जी के, आप चाहे उसको कुछ भी बना दो. जो कर रहे हैं उसके साथ इमोशंस डाल रहे हैं. एक गाना चल रहा है उसके साथ थोड़ा इमोशंस भरा हुआ है, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो. हाँ. अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसा होगा? अभी भी यहाँ भी इस साल में एक नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे यहाँ पहले पेंटिंग, कविता और संगीत, ऑफकोर्स संगीत के अंदर नृत्य और वादन सब आता है, तो ये बहुत करीब था. हाँ, अब ये अगर हम लोगों ने पेंटिंग करीब ला रखी थी तो ये क्यों नहीं, कैमरा क्यों नहीं करीब आ सकता? चांसेस तो बहुत हैं, क्योंकि उसको हमारा संगीत इतना बड़ा हो गया कि उसके साथ में कोऑप करना बहुत मुश्किल लगता है. मगर कोई न कोई तो होगा ना, आप जैसा कोई न कोई पैदा हो जाएगा. कोई गाना है ना, क्या ना उसका, आप जैसा मेरी क्या जिंदगी में है तो बात बन जाए. वैसा कुछ हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है. और अगर हुआ तो अच्छा है, हुआ तो सच में अच्छा है. अच्छा पंडित जी, एक मैं पूछना चाहता हूँ हाँ. कि आपके शहजादे शारंगदेव, वो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर बन गए हैं, तो उनका जो कंपोजिशन का ढंग वगैरह है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो अनयूजुअल है, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है. ऐसे आम तौर पे अगर हम लोग म्यूज़िक डायरेक्टरों को देखें तो एक दूसरे से प्रभावित हैं. शारंगदेव का काफ़ी अलग है, एकदम बिल्कुल आइडेंटिकली पता चल जाता है कि शारंगदेव है. वरना जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनका तो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन, अगर वो जो उनका क्या कहते हैं, कंपोज नहीं, क्या कहते हैं, अरेंजर अगर इधर से उधर हो गया तो वही पता चलता है कि वही कलाकार का है. तो अरेंजर पे कितना निर्भर करता है. लेकिन आपने उसको कुछ सिखाया है? इन्फ्लुएंस होगा उनके ऊपर. तो पैदाइशी है. सीखा था है उन्होंने. ही यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी, प्ले तबला भी बजाते थे, गाना भी सीखते थे. बहुत 7-8 साल तक हमारे साथ ट्रैवल किए हैं. आप फिल्म के लिए म्यूजिक क्यों नहीं? नहीं, मेरा तो फिल्म के लिए म्यूज़िक देना मतलब एक बात ये थी कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं गाना गाऊं. समझ में नहीं आ रहा था, तो ऊपर वाले से कहा कि अरे भैया आप मुझे 25 रुपया दे दीजिए गाना गवा के, तो मेरी ज़िंदगी को मैं उसमें समेट लूँगा और कुछ करूँगा नहीं. और मुझको, मैंने कहा ना कि मैंने सानंद बापू ने हमारे साथ में, हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई. मेरे बड़े भाई साहब की आवाज़ आई वगैरह वगैरह.
तो मुझे ऊपर वाले पे सच में बहुत विश्वास है। और हमने पल्ला पसार के कहा कि तुम भी मतलब हमारे साथ में अगर ऐसा नहीं करोगे तो, मगर मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और कुछ करके मतलब पैसा नहीं कमाऊँगा। इसलिए शांताराम जी ने जब मेरी शादी के बाद में उन्होंने कहा क्या 6-8 महीने 10 महीने के बाद में कहा, अरे भाई तुम्हारे तो कोई प्रोग्राम वोग्राम तो होते नहीं हैं तो तुम क्यों नहीं हमारे वो गीत गाया पत्थरों का वो चल रहा है, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है। तो इस वक्त वसंत देसाई कर रहे हैं, गाना तो रामलाल ने बनाया था, तो तुम्हारा नाम भी उसमें लगा देते हैं, तुम आके बैठा करो, म्यूजिशियन हो समझ जाओगे। तो मैंने पापा को ये बात बताई कि नहीं पापा, मैंने एक भगवान से कांटेक्ट किया है और उसमें ये कहा कि मैं और कुछ करके नहीं कमाऊँगा। उनको बहुत आनंद आया, बड़ा प्यार से आशीर्वाद दे के कहा कि भगवान करे तुम्हारी, भगवान सुन ले लेकिन आपने उनके फिल्म के लिए गाया है गाना? गाना तो गाया, मैंने कहा ना गाना गा के कुछ करूँगा, मैंने ये नहीं कहा कि और करके। आराम से मैंने एक मधुरा जी के दो चार मतलब म्यूज़िकल बैले और ओपेरा उसके लिए संगीत दिया अच्छा। एक तो मधुरा जी ने मतलब डायरेक्शन उनका था, उसका नाम था कान कहानी सुनियो करे। उसमें मैंने 2 भैरवी दी थी, तो दोनों ही मेरी रिकॉर्ड है। करिए ना, माई सावरे रंग राची, उनके बैले क्या माई सांवरे रंग राची, माजी माई सांवरे रंग राची, गया कुमतड़ा राधा संगत, गया कुमतड़ा राधा संगत, श्याम प्रीति जग साची, माई सांवरे रंग राची। ये वो बैले के लिए बना था हैं? और एक और है कौन सा कला, कौन सा यार रतन बाबू? अपने पहनने का ये प्रॉब्लम है, कैप भी लगाया इसी का ही और ये भी पहन लिया ना मैं आज के 7:15 वो मैंने 2 मतलब वैसे तो 20 गाने थे और हर गाने में राग के ऊपर बिल्कुल पूरा रूप से राग, जैसे मिस ही मिस आवे गोकुल किनार, नंद महर आंगन मूर्ति देखे बिना न पर, फिर राय नंद धार, बायर को देते गार, इस प्रकार के। और कंपाइल ये किया था कि भक्त कवि और रीतिकालीन कवि, तो ये नंददास का है, भक्तों का है, और एक वो कौन सा रतन देव का। मैं आपको पद्माकर की एक रचना सुनाता हूँ, पद्माकर की सवैया जिसको पूछती न काहेरी, पूछे बिन बोलो कहाँ, पूछती हूँ कहाँ भई भेद अधिकार, बोलती न काहे हेरी, पूछे भी न बोलो का। गई आई हो तो सावर पार,
गई आई हो तो सामरे पास, तेरे काजला वन सो तेरी ही दुहाई है, बोलती न काहे वो जैसे पूछे बिन बोलो कहाँ, बोलती न काहे। ऐसे तो मतलब जो म्यूज़िकल काम है वो करते हैं, और उसमें कमाई का तो कोई साधन नहीं था। मधुरा के लिए किया तो कर दिया। और उसमें 2 भैरवियाँ बनाई थी, तो एक तो ये थी हाँ ठीक है। माई सावर रंग राची, माई सावर रंग राची, सावरे बोलो, बहुत अच्छा बोला। माई सावरे रंग राची, माई माई सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची, गाया गाया हरि गुण निस दिने, गाया गाया हरि गुण निस दिन, गाया 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 हरि गुण निस दिन, काल ब्याल रे बाची, काल ब्याल रे बाची, श्याम बिना जग खारा लागा, श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता काची, माझी सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची, माझी सावरे माई सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची, माझी सार रंग राची, माझी माई सावरे, माझी सावरे रंग राची, माझी सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची, गाया गाया हरि गुण निस, गाया गाया हरि गुण निस, गाया 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 हरि गुण निस, काल ब्याल रे बाची, काल ब्याल रे बाची, श्याम बिना जग खारा लागा, श्याम बिना जग खारा लागा, श्याम बिना, श्याम बिना, श्याम बिना, श्याम
श्याम बिना जग खारा लागा जगरी बाता काची माई सावरे रगराची माई सावरे रगराची श्याम बिना श्याम श्याम बिना जग खारा लागा जगरी बाता काची माई सावरे रगराची